12th we are again focusing on the numerical portion of electrochemistry, and as you know we were doing the first law of Faraday's, so we are doing the numericals on its on that particular law. So I have given this particular numerical: when a current of 11 ampere is passed through an aqueous solution of chromium chloride, it is observed that 6.2 grams of chromium is deposited. For how long was the current passed? So first of all, our duty is we have to check what things is been given to us. So the question says that I is given to us, that is about the current दिया रखा है, it's 11 ampere they have given us. Then they have given you about this thing. Let's see what all things are given to us. They have given you W also, that is 6.2 grams they have given you. Now they have given you the, I think, value. These two things are given to us and rest of the things are missing, and they are asking you about the for how long was the current was passed. So time they are asking you. Okay, now you know that according to, we'll see, according to Faraday's first law of electrolysis, we know few things, that is small w is equals to capital Z into I into T. Now these two things are given to you, but Z is still missing. So if you remember the Z, I think this formula you have seen, E is equals to Z into 96500. ठीक है, ये चीज़ आपको is been there, this formula is there, and from there you can easily calculate the Z value, and I think that is not a big issue, that from here you can see the Z value. So first of all we have to see that what things are not given to us. So let's focus on, we have to see that equivalent जो weight है, that is also not given to you, but there is one reaction is also given to us. This is this thing which I missed. You put the reaction over here. Now from here you can easily see the equivalent weight. अब आपको पहले क्या निकालना है, equivalent weight of chromium you have to calculate, which says that atomic mass, ये तो क्लास उधर का है ना, atomic mass अपॉन, ये याद होगा, नंबर ऑफ electrons gained पर मोल. ठीक है, अभी एटॉमिक मास किसका है, ऑफ क्रोमियम. अब एटॉमिक मास क्रोमियम का हमें कितना दिया रखा है क्वेश्चन पेपर में, आई थिंक दे हैव नॉट गिवन, बट वी कैन ईजली राइट डाउन देयर मास, दैट इज़ 52 होता है. सो यू कैन राइट डाउन द वैल्यू, दैट इज़ 52. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, रिएक्शन में देखो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 3. सो दिस थिंग यू कैन ईजिली कैलकुलेट. तो ई की वैल्यू आपको ये चाहिए, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए या इसको भी छोड़ दीजिए, फॉर्मूले में लिख दीजिएगा. तो ई की वैल्यू आपको मिल गई. अब नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज़ ओवर हियर, एंड लेट्स फोकस फ्रॉम द दिस थिंग. जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. सो हम यही फॉर्मूले में अपना लिख लेंगे. ठीक है, तो जेड विल बी इक्वल टू 52/3 इंटू 96500. So what you can see that from here you are getting the values of this thing. Z is been there, fine. So instead of going it for a डिवीजन के और डेसिमल में आए, इसको ऐसे ही लीव कर दो, करना चाहो तो कर लो. अब आप अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ लगाएंगे. फेराडेज लॉ के हिसाब से हम पहले ही फॉर्मूला लिख चुके हैं, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी. तो हमने यहाँ Z की वैल्यू लिखी 52/3 इंटू 96500 इंटू आई, दिस इज़ देयर, आई वैल्यू इज़ 11 इज़ बीन गिवन टू अस. देन टी निकाल रहे हैं, वेट की वैल्यू आपको 6.2 दिया रखा है. तो जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू, कैलकुलेटर्स हैं आपके पास, 3137.93 सेकेंड्स हमारा आंसर आएगा. ठीक है, दिस वे यू कैन डू द न्यूमेरिकल. Now children, the next question we are seeing, chromium metal can be plated out from an acidic solution containing chromium oxide according to the following reaction is given to us. They are asking calculate how many grams of chromium, जिसका atomic weight 52 है, will be plated out by passing 2400 coulombs of electricity. If a current of 24 ampere is being used, how long will it takes to plate out the amount of chromium calculated in above question. So first of all our duty is we have to see what is given to us. Now please see from the question,
what sort of things are given to us. They have given you the I, that is जो आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, आई आपको गिवन है 24 एम्पियर, क्यू की वैल्यू भी गिवन है 2400 कूलम्स, ठीक है, ये हमें गिवन है दोनों चीज़ें. नाउ आर ड्यूटी इज हाउ वी कैन डू दे व्हाट दे आर आस्किंग यू मैनी थिंग्स. एक तो उसमें नंबर ऑफ many grams of chromium is been asked and if this thing the amount of chromium calculated, ठीक है. तो दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं बेसिकली. द अमाउंट ऑफ दिस थिंग कैलकुलेट, टाइम पूछा गया है, अमाउंट ऑफ हाउ मच इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो टाइम पूछा गया है आपसे, ठीक है. अगर हम अपना फैराडेज लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, पहले तो हमें यही देखना पड़ता है ना व्हाट थिंग्स आर गिवन टू अस. तो W इज़ इक्वल्स टू ZIT, ये है, ठीक है. अब हमें Z फिर नहीं दिया रखा है, या आप ये कह सकते हैं W इज़ इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, ठीक है. तो वेट भी क्योंकि पूछा गया है आपसे, W भी पूछा गया है और T भी पूछा गया है. तो चलो देखते हैं, पहले हम Z की वैल्यू निकाल लें. तो वही वाली बात है कि इक्वलेंट वेट ऑफ क्रोमियम हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मोल, ठीक है. सो दिस विल बी 52 डिवाइडेड बाय 6 जो अभी हमने करा था. और E की वैल्यू होती है Z इंटू 965,500, ठीक है. तो Z की वैल्यू हमें आराम से यहाँ पे हम ईज़िली हम लिख सकते हैं. ये क्या हो गया हमारा 52/6, क्योंकि यहाँ देखो जो रिएक्शन है, अब देखो यहाँ हम 3 नहीं लिख रहे हैं, मैंने रिएक्शन लिखी हुई है. यहाँ पे टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गिवन है, इसीलिए मैं 6 यहाँ प्लेस कर रही हूँ. पिछले वाले केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 3 लिखा था. कंफ्यूज मत करना कि Cr+3 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा. आपको रिएक्शन अगर गिवन है तो रिएक्शन में भी देखना है. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है ये, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो वही मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव पुट इट ओवर हियर, ठीक है. सो Z इंटू 96500, so Z is equals to 6 into 96500 ग्राम पर कूलम्स, ठीक है. हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल्स टू ZIT या W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, ठीक है. क्योंकि दो अलग अलग चल रही हैं चीज़ें, तो ये हो जाएगा 52 6 इंटू 96500 इंटू 24000. तो W की वैल्यू आपकी आएगी 2.155 ग्राम्स ऑफ क्रोमियम. ना चलो नेक्स्ट इज़, जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है वो Q इज़ इक्वल्स टू I इंटू T. तो Q की वैल्यू 24 इतना दिया रखा है, I की वैल्यू आपको 24 दिया रखा है. टाइम आपको निकालना है, तो T कितना है 24000 डिवाइडेड बाय 25, टाइम आपका 1000 सेकेंड्स हो जाएगा. आई थिंक दिस न्यूमेरिकल इज़ क्लियर टू यू ऑल. Natural next is a current of 4 ampere is passed through a molten solution for 45 minutes. 2.977 grams of metal is deposited. Calculate the charge carried by the metal cation if its atomic mass is 106.4 gram per mole. Now let's see what things are given to us. That is one of the important condition. What thing is being asked. Now they are over here, if you focused on the question, they calculate the charge carried by the metal. Charge पूछ रहे हैं, मतलब they are asking you about the valency. So if you see the charge हो गया, मतलब ये वैलेंसी पूछ रहे हैं आप पे, भाई कितना भी होगा, 4+ होगा, माइनस होगा, तो वो प्लस माइनस वो एक, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे इनने गिवन है आपको कि दे आर आस्किंग यू अबाउट द चार्ज, ठीक है. और यहाँ पे साफ एक बात लिखी गई है, दे आर सेइंग मेटल. तो वॉट एवर आंसर विल बी कमिंग, यू हैव टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ प्लस, क्योंकि मेटल्स ऑलवेज कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. सो दे आर आस्किंग यू द वैलेंसी ऑफ इट. नाउ लेट्स सी व्हाट थिंग्स आर given to us. That is one of the important conditions. So weight is also given to us, so that thing also we have to see. Then they have given you about
the current also. So these things are there which you have to focus, that they have given you time, they have given you, तो 45 आपको मिनट्स दिया रखा है और हम लोग आंसर जो है सेकेंड्स में लेते हैं, तो टाइम हमको 45 मिनट्स गिवन है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो 45 इंटू 60, तो ये हमारा सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, हमको आई की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4 एम्पियर दे हैव गिवन, एंड वैलेंसी दे आर आस्किंग यू। सो फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन ईजिली कैलकुलेट क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। सो आई इज़ about 4 into 45 into 60. So you have the calculators children, so calculate it with this and you will get this much of q. Now children we have calculated the value of q, तो जो हमारा 10800 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है हमारा करीबन 2.977 ग्राम्स ऑफ मेटल, ये भी गिवन है हमको वेट। तो ये वैल्यू वो थी जो हमने कैलकुलेट करी, तो इसीलिए देयरफॉर 965 स्टैंडर्ड वैल्यू पे हमारा कितना निकलेगा ये ऑफ चार्ज डिपॉजिट विल बी 2.977 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 10800, सो यू विल गेट इट अबाउट 26.6 ग्राम्स ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमारा मेटल आ गया। तो ये जो हमारा मेटल आया, क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं रखा, यही हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आया जो हमारा 26.6 ग्राम्स है। अब वैलेंसी इफ़ यू सी, वैलेंसी विल बी, यू नो इट वेरी वेल दैट एटॉमिक, क्योंकि मेटल दी रखा है तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमें कितना गिवन था 106.4 और इक्विवेलेंट हमने वेट निकाला है 26.6, तो हमारी वैल्यू 4। मैंने अभी कहा था कि मेटल है तो वैलेंसी इसकी जो आई आपकी 4 निकल के आई। ठीक है, लेकिन चार्ज पूछा गया है तो चार्ज वही होगा कि जो भी वैलेंसी आई उस पर आप मेटल है तो पॉजिटिव लगाएंगे, अगर हम यहाँ नॉन मेटल देते तो नेगेटिव। तो चार्ज ऑन द मेटल कैटायंस इज़ +4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैलेंसी पे कोई चार्ज नहीं होता ना, वो तो एक न्यूट्रल होल वैल्यू होती है, होल नंबर वैल्यू, तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन चार्ज पूछा गया तो आप यही जो वैलेंसी पे आप प्लस चार्ज लगा दीजिए, क्योंकि मेटल है। नॉन मेटल है देन यू विल पुट अ नेगेटिव साइन। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग द or doing the numerical. So we have covered different concepts of it, so I think you can do this part of it. Now I am giving you few questions, so you practice that questions in your copies. Now children, there is one question. 20 ml of 0.13 m nickel sulfate is electrolyzed using a current of 360 milliampere for 35.3 minutes. How much of the metal would have been plated out if current efficiency was only 60%? Atomic weight of nickel is given to this and this weight is being asked में कितना amount of nickel deposit होगा। तो please make sure that first of all you have to write down the equation. You know that +2 होता है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये ऐड ऑन करेगा तो ये निकल एटम बना लेगा। ठीक है, तो पहला आपकी ड्यूटी है कि आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे ऑफ निकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास जो भी दिया रखा है या एटॉमिक वेट दिया रखा है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि गेन कर रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, तो आपको कितना गिवन था 58.7 डिवाइडेड बाई 2, so that will be, you can keep it like that only or you can use the calculator. Second part आप इसमें क्या करोगे, W is equals to EIT upon 96500, so you can get the value when you substitute these values from it. E आपको यहाँ given ही है। ठीक है, और आई की वैल्यू भी चलो हम इसमें लिख लेते हैं, ई हमने निकाल लिया है और आई की वैल्यू भी हमको गिवन है और टी की वैल्यू भी गिवन है ना। तो जो आई की वैल्यू हमको गिवन है बेसिकली इसे समझने की ज़रूरत है कि हमें 360 मिली एम्पियर है, तो हमें एम्पियर में लेना है, तो हम इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 0.36 आएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा 1000 से, तो आपका यू विल गेट इट 0.36। ठीक है, तो वो एम्पियर हो जाएगा क्योंकि वो मिली में, मिली एम्पियर्स हम यूज़ नहीं करते हैं, हम एम्पियर यूज़ करते हैं, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ई की वैल्यू आपने निकाली ली। अब टी को भी देखिए, टी जो आपको गिवन है दे हैव गिवन यू अबाउट 35.5 मिनट्स, और मैंने तुम्हें
में कहा है कि आपको सेकेंड्स में यूज़ करना है, तो 35.5 इंटू 60. सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज़, ऑल दीज वैल्यूज़, एंड यूल गेट द आंसर. सो लेट्स पुट द फॉर्मूला वंस अगेन. W is equals to EIT upon 96500. यू विल गेट ई की वैल्यू हमने 58.7/2 लिखा है. आई हमने कन्वर्ट करा है 0.36 एम्पियर में लिखा है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करा है, और 60 नाउ डिवाइडेड बाय 96500. सो डब्ल्यू विल बी 0.23190 ग्राम्स. ठीक है. नाउ अब आपको जो करंट एफिशिएंसी है आपको गिवन है, करंट एफिशिएंसी दैट इज़ 60%. ठीक है, गिवन है ये. तो एक्चुअल अमाउंट हमारा ऑफ निकल डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, जो 0.23190 अभी 60% का गिवन है ना, एग्जैक्ट तो है ही नहीं, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये है आपका एक्चुअल अमाउंट जो डिपॉजिट होगा. मतलब इतना आपका आ रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू, लेकिन क्योंकि करंट की एफिशिएंसी 60% है, तो जैसे हम लोग 10th में नहीं करते थे कि परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चंस में, तो हम उसको लेके चलते थे. तो वो चीज़ तुमको देखनी है कि 60 अपॉन, अगर ये 90% होता तो 90/100 होता. अगर ये बाई चांस करंट एफिशिएंसी 100% है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू गेट द सेम आंसर. तो इतनी वैल्यू में से सिर्फ इतना ही अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है, बाकी आपका नहीं डिपॉजिट हुआ है. सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हाउ यू विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पोर्शन. So please copy all the numericals and do the numericals whatever is been related to this portion. I am giving you one more numerical, you do that one, because I think when I saw this numerical I thought ki difficulty will arises how to convert it into ampere and how to convert into seconds and that, so that's why I did that question. So I am giving you the question, you copy down the question and do it by your own. So children, you will do this numerical. 0.3605 grams of a metal is deposited on the electrode by passing 1.2 ampere of current for 15 minutes. Please convert it into seconds through its salt solution. The atomic weight of the metal is 96. What is the valency of the metal? So valency has been asked, so please write down it. एंड प्लीज़ राइट डाउन बोथ द थिंग्स. मतलब चार्ज के साथ भी लिखना, विदाउट चार्ज के साथ भी लिखना, दोनों लिखना. ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर जो है +3 था, इसीलिए हमने कहा, बट यू डू इट इन बोथ द मैनर्स. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. प्लीज़ प्रैक्टिस एंड कॉपी इट इन योर केमिस्ट्री क्लास वर्क कॉपी.